Students, what happens when you roll a ball on the ground? It comes to stop after some time on its own. Why? For writing, we need a pen or a pencil to write on a surface like a notebook or a board. Try writing on a glass surface. We not able to write. Have you wondered why? During winters we rub our palms and it becomes hot. Have you ever wondered why? The answer to all these is friction. We have studied about types of forces in the previous chapter. One of the most important contact force is friction. Walking comes naturally to us. But have you ever wondered what enables you to walk? Friction. Yes. Friction is a force that always opposes the movement of an object. It arises when two objects come in contact with each other. जब दो objects contact में होंगे, उनके surfaces contact में होंगे, तो it will come into force. It is a self-adjusting force. इसका मतलब हुआ it automatically adjusts itself to the applied force. अगर force applied increases तो force of friction also increases. Now let us know what causes this friction. How is friction caused? Friction occurs जब भी दो bodies that are in contact move or tend to move with respect to each other. अब it depends upon the surface of contact of bodies. जब भी हम किसी भी surface को microscopic उसकी examination करते हैं, बहुत सारे objects के surfaces की microscopic examination जब करेंगे, it reveals that all the surfaces have irregularities. उनके surface uneven है. बाहर से हमें वो जैसे मर्जी दिखाई दे, लेकिन जब उनका microscopic examination करते हैं surface का, तो all the surfaces have certain irregularities, unevenness. When two surfaces slide over each other, जब दो surface एक दूसरे के ऊपर slide करेंगे, तो irregularities जो होती हैं इन दोनों surfaces की, वो एक दूसरे के साथ interlock कर जाएंगी. And this interlocking opposes the motion between the surface in contact and gives rise to friction. तो इसका मतलब हुआ कि force of friction जो है basically it is caused by interlocking of the irregularities between two surfaces which are in contact. और we need some sufficient force जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये interlocking जो है ब्रेक हो जाएगी and the body will move. Now what factors affect friction? It is a common experience. It is easier to slide a book. एक बुक टेबल पे पड़ी है, आप उसको आसानी से स्लाइड कर सकते हैं, बट क्या आप उसी ईज के साथ एक लार्ज बेड को अक्रॉस द फ्लोर या रूम आप मूव कर सकते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फ्रिक्शन डिपेंड्स. पहला है टाइप ऑफ सरफेस और नेचर ऑफ सरफेस. रफ सरफेस जो होता है इट हैज़ मोर इरेगुलरिटीज दैन अ स्मूथ सरफेस. ये तो हमें टच से भी पता लग जाता है. इसका मतलब कि रफ सरफेस जो है वो ज़्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस शो करेगा टू द मोशन, और जितना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस शो करेगा टू द मोशन उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी और उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. द सेकेंड फैक्टर इज मास और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस रिकॉल what happens if you are asked to push a plastic chair. खाली प्लास्टिक चेयर को आपको पुश करना है, आप आसानी से पुश कर देते हैं, राइट?
लेकिन what happens if someone is sitting on it? Let's say some elderly people is sitting on it and you are asked to push it. Do you find the same force needs to be applied? No. जब one person is sitting on the chair, the weight becomes more, and one weight is more, object का weight ज़्यादा होगा, तो the heavy object will be pressed harder into the irregularities of the surface. और जितना ज़्यादा वो प्रेस होगा उतना ज़्यादा वो ग्रेटर रेजिस्टेंस शो करेगा टू द मोशन, और उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. दैट इज़ वाई वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू मूव हेवियर थिंग्स. जितना लाइटर होगा ऑब्जेक्ट वेट में उतना कम इंटरलॉकिंग होगी, उतना कम प्रेसिंग होगी, और वो आसानी से हम मूव कर सकेंगे. द थर्ड वन इज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है. अगर आपको एक व्हीकल को पुश करने को कहा जाता है, लेट्स से सपोज अ कार और अ स्कूटर, समथिंग हैज़ कम टू अ स्टॉप एंड यू आर आस्क्ड टू पुश इट. तो जब आप इनिशियली उसको पुश करेंगे, इफ़ इट इज़ अ फ्लैट टायर, स्पेशली अगर पंचर हो गया है, तो अगर आपको उसको पुश करना है तो आपको पता है कि यू नीड रिक्वायर, जब वो स्टेशनरी है वहाँ से आपको उसको मूव करने के लिए बहुत हैवी फोर्स चाहिए. लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाता है मूव करना, तो आप ज़रा सी भी फोर्स लगाते हैं, इट्स गोज़ ऑन मूविंग, राइट. दैट मीन्स इट इज़ ईजी टू मूव एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट, एज जब ऐसा होता है तो जो इंटरलॉकिंग है उसका टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, और इंटरलॉकिंग कम हो गई तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया. Do you understand? Now next is, what are the different types of friction? Friction are of three types. Now consider two surfaces which are in contact and are at rest. एक object rest पे है. Let's say the bed in your room or a dining table in your room or a box. हम जितनी भी चीज़ें स्टेशनरी देख रहे हैं उनके बीच में जो दो सर्फेसेस इन कांटेक्ट हैं और वो रेस्ट में हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, इट टेंड्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. इट ऑलवेज opposes the applied force and it is always equal and opposite to the applied force. ऑल राइट. और जब ये फोर्स अप्लाई होती है ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एंड रिमेन्स स्टेशनरी. द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दिस फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, और उसमें से वन ऑफ देम इज स्लाइडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अदर. This is known as sliding friction. अगर आप बॉक्स को पुश कर रहे हैं, एक बॉक्स को, हैवी बॉक्स को आपको पुश करने को कहा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग, और इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं दे डू नॉट गेट इनफ टाइम टू इंटरलॉक, तो हमें थोड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है टू कीप इट मूविंग एज कंपेयर टू द फोर्स नीडेड टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट. इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन. The third type of friction is rolling friction. Friction that comes into play जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है. And we know that sliding friction is always greater than rolling friction. अगर हमारे बैग में बैग को, हमने हैवी बैग को पुश करना है, स्लाइड करना है, देन इट रिक्वायर्स मोर फोर्स. लेकिन अगर उसके नीचे व्हील्स होते हैं तो वी कैन ईजिली मूव दैट हेवियर बैग. सो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑफर्स लीस्ट फ्रिक्शन. दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन rolling friction. Rolling friction is least. Now an important part of the chapter is spring balance. Spring balance एक device होती है which is used for measuring force acting on an object. इससे हम weight find out कर सकते हैं किसी भी object है. You can see it in the diagram that this is a spring balance जिसके ऊपर measurements लिखी हुई हैं and it indicates the weight
और ये जो हुक है इसके साथ हम वेट जो है वो अटैच कर सकते हैं। और इसमें एक स्प्रिंग होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एंड ये स्प्रिंग जो होता है इट गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो जब भी हम उसके नीचे वेट अप्लाई करेंगे द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड, नीचे की तरफ पुल हो जाता है। नेचुरली आपको पता है जब वेट हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा एंड द रीडिंग ऑन द स्केल विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और हाउ मच अमाउंट ऑफ वेट इज देयर। So for today's work, only this much from chapter friction. We'll be studying about the advantages and disadvantages of friction and how to increase and decrease friction. What is the role of friction in our daily life in the next part of the chapter. Thank you.